Students, before moving towards some questions of the chapter of integration, let me just recap what we have studied in the first video of integration, chapter 7, okay, for the CBSE board. This is the symbol of integration. When we integrate with respect to x, we have this symbol of integration and dx, okay, and this is a small definition that I have suggested to you. That is, let capital Fx and small fx be the functions connected such that derivative of capital Fx is small fx. Then capital Fx is called the integral of small fx, or the indefinite integral, or an antiderivative. Getting my point? Now this third point, I am just fastly recalling these terms. Now we will be beginning with some of the questions of the chapter of integration. So integration of fx dx. Here fx is what? Function of x. Integration is it means what? Integration of fx with respect to x, where fx is what? Integrand, and this is symbol of integration. Now see, get this basic idea. What do you mean by differentiation, this term, and integration? They are opposite to each other. Differentiation means breaking up into parts. इंटीग्रेशन मीन्स समेशन ऑफ द पार्ट्स. समेशन करके क्या करोगे? पूरा होल बना दोगे. जैसे इसका सही ये सर्कल था, मैंने इसको बीच में से लाइंस ड्रॉ करी तो इसके पार्ट्स बना दिए. इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स क्रिएट हो गए. इसको मैं कंप्लीट कर दूं, सारे पार्ट्स को जोड़ दूं, तो ये मैंने पूरा सर्कल बना दिया. तो ये हो गया इंटीग्रेशन, और ये हो गया इसी से इसका ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, और इससे ये और इन पार्ट्स से ये इसका इंटीग्रेशन. समझ में आ रहा है? बेसिक. नाउ वी विल डू सम of the basic questions of this chapter. Okay, I will just show you these two questions, and then we will be doing with some of the important 10 questions in this video. Okay, now this first one, see this. Integration of 5 raised to the power x dx. In the first video I have given you this formula. Integration of a raised to the power x dx is what? A raised to the power x upon log a. Log a plus c. A is greater than 0, a cannot be 1. a 1 क्यों नहीं हो सकता यहाँ पर? क्योंकि a 1 होते ही ये वैल्यू 0 हो जाएगी और कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी infinity. Not defined. Getting my point? So just simply you will just equate these terms. So this a will be 5 here. So 5 answer will be what? 5 raised to the power x अपॉन लॉग a log 5 प्लस c. क्योंकि यहाँ पर a क्या है हमारा? a क्या है हमारा? a हमारा 5 है यहाँ पर. गेटिंग माई पॉइंट? सो सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर, a पर क्या पावर है? 3 log बेस a ऑफ x. log का क्या है? बेस है a बेस. गेटिंग माई पॉइंट? सो इंटीग्रेशन ऑफ a. Now see, this power, when anything that is like something m log n, it becomes log n raised to the power m. Applying this formula, okay, here. So this 3 raised to the power x, so becomes x cube. It becomes x cube. So it becomes integration of a log base a x cube. लॉग का बेस क्या है? a है, और लॉग में जो डोमेन में वैल्यू है वो अब क्या हो गई? x क्यूब हो गया. सो दिस सी, एंड नाउ समथिंग विच इज बेस, आई कैन से इफ समथिंग इज बेस x, आई विल जस्ट शो यू जनरल थिंग. बेस x and log is also some base x, and we have some n. So this x, if this condition is there, then the answer will be n. Similarly, applying this here, base a base x log base a log x, so it will become x cube dx. Now the simple formula I have told you in the first video. If you have not watched, go and watch the first video. Okay, so integration of x cube will be what? Integration of xn. N is any number, will become x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, which is a constant. So x will become n plus 1, that is 3 plus 1 upon n plus 1, that is 4. So x raised to the power 4 upon 4 plus c, and c is a constant. हमेशा constant तो आएगा ही आएगा. जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तब constant आएगा आपका. ये मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आप लोगों को.
समझ में आ रहे हैं ये क्वेश्चंस दोनों? कमेंट कीजिए और बताइए मेरे को, और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बताइए, तभी इम्प्रूवमेंट हो सकेगा और मैं आपको क्वालिटी डिलीवरी दे पाऊंगा. एंड इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट देन लाइक एंड शेयर इट. ओके, एंड जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट of this, all these formulas, so that you can easily get these formulas and learn them. If you learn these formulas, you will be able to solve the maximum number of questions of this chapter of integration. This is a very important chapter for the class 12th. It comprises of 30 marks and it is very well used in the applications of integrals also. Next chapter. Okay, so moving further with the next questions. So our next question will be visible to all. So our next question will be first one, that is integration of 1 plus x square upon root x and dx. Getting? This will be our first 1 plus x whole square. Okay, this will be our first question. So since everybody knows a plus b whole square है ना, है कि नहीं है हमारे पास? हम जानते हैं ना a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है. तो a plus b होल स्क्वायर इज व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, सो सी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a and b अपॉन root x and dx. Getting my point? So it becomes 1 plus x square plus 2x upon root x dx. Okay, it becomes this. Now just dividing with this, it becomes 1 upon root x dx. देखिए डिफरेंस, ये जो dx सिंबल है हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन के लिए. तो आप जब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन रूट एक्स आएगा. और जब रूट एक्स से डिवाइड करेंगे x2 को, तो रूट एक्स क्या होता है? पावर 1 अपॉन 2. तो दिस x रेज़ टू द पावर 2 अपॉन x रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2. दिस विल बी होल इंटीग्रेशन एंड dx. एंड नाउ 2x अपॉन रूट एक्स dx. इंटीग्रेशन विल बी देयर. ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंटीग्रेशन हमारा. ये समझ लो ये मैंने कैसे कर दिया. ये क्या हो रहा है? इक्वल्स टू लगा लेना यहाँ पर इस तरीके से. तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? x रेज़ टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2 dx. होगा नहीं होगा? 1 अपॉन 2 पावर अपॉन में ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव की हो जाएगी. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू दी पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 and dx. ठीक है ना? I hope you are getting this. If you are not, then write in the comment section. 2 will be outside क्योंकि 2 क्या है? हमारा कांस्टेंट है. हम इंटीग्रेशन हमेशा किसका करते हैं? देखो मैंने ये 2 बाहर किया क्योंकि ये भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को. 2 क्या है? कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन थोड़ी होगा. जो चीज़ वेरी कर रही है, वेरी क्या कर रहा है यहाँ पर? विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो एक्स को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएगा? इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा. तो यहाँ पर 2 है तो ये कांस्टेंट निकल के बाहर आ गया. तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 एंड dx. होगा नहीं होगा? नाउ दिस बिकम्स, अब हम ये जानते हैं कि सिंस x रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx, n यहाँ पर क्या है? कोई भी कांस्टेंट है. क्या होता है? x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट. कांस्टेंट हमेशा आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना आप. कांस्टेंट हमेशा आएगा आपका. ठीक है, तो आप क्या करोगे? अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x रेज़ टू द पावर n. n क्या है? माइनस 1 अपॉन 2.
plus 1 upon minus 1 upon 2 plus 1. Similarly, this 2 minus 1 upon 2 will be what? 3 upon 2. So this will become 3 upon 2 plus 1 and upon 3 upon 2 plus 1 plus 2 outside. This will be 1 upon 2. So this will become x 1 upon 2 plus 1 upon 1 upon 2 plus 1. Getting my point? See, minus 1 upon 2 plus 1 is 1 upon 2. That is root x only, okay? And minus 1 upon 2 plus 1 is 1 upon 2. अरे 1 में से 1 अपॉन 2 घटाओगे तो क्या बचेगा? हाफ बचेगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा? चलो नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ, घबराओ नहीं। 1 अपॉन 2 ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 ही रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 क्या यहाँ पर ऐड होगा तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5. दिस विल बिकम 5 अपॉन 2 पावर. दिस विल ऑल्सो बिकम सेम 5 अपॉन 2. दिस विल बी 2 x raised to the power 3 upon 2 upon 3 upon 2. 3 upon 2 is what? 1.5. That is 1 plus 0.5. This will be 1.5 only, okay? Getting my point? So, what will be our answer? 2 will be at the first place. So, this will become 2 root x plus 2 upon 5 x raised to the power 5 upon 2 plus 2 will raise above, so it will become 4 upon 3 x raised to the power 3 upon 2. अगर कोई भी डाउट आ रहा है आप लोगों को तो घर पर इसको करके देखिए, कॉपी पेन निकाल के बैठिए, क्योंकि जब तक आपका खुद का एफर्ट्स नहीं होगा यहाँ पर तो ये समझ में नहीं आने का है. एंड प्लस कांस्टेंट, क्या ये जस्ट forgot this, you have to put the constant also. So this will be our first question. Hope you have understood this. Okay, getting this? Just take a screenshot so that you can remember it in a better manner. Okay, now moving towards our second question. So, our second question will be this. Now I am writing it. Okay, find the antiderivative. Find the antiderivative capital F of small f. Recall the definition that I have given. Defined by f of x equals to 4x raised to the power 5 minus 6x, and given is, this is also given that f of 0 is 1. That is, if you put x equals to 0, then your function value capital F is 1. Getting my point? So see, understood this? Antiderivative capital F फाइंड करना है आप लोगों को. किससे फाइंड करना है? स्मॉल f से. डिफाइंड बाय fx ये दे रखा है, मतलब f का डेरिवेटिव क्या है? ये है. इससे एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है कैपिटल एफ. वो कैसे करते हैं हम ये जानते हैं. सिंस रिलेशन मालूम है आप लोगों को. क्या मालूम है? डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स. था नहीं था? बोलो था. तो आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन विल बी कैंसिल्ड. So it will become what? It will become capital Fx and integration of Fx. Okay, and on integrating it will give a constant. और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? dx के रिस्पेक्ट में होगा. समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिए. Now integration of small fx. What is small fx? 4x raised to the power 5
minus 6x dx plus constant. Okay, now 4 is a constant, 4 outside, x raised to the power 5 dx minus 6 outside. This I have distributed the integration. Okay, x will be inside dx plus c. Now the same formula, अभी मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूले, आगे नहीं लिखूंगा तो आप लोगों को आ जाएगा समझ में. x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Now this 4 into x raised to the power 5 plus 1 upon 5 plus 1 minus 6 into x raised to the power 1 plus 1 अपॉन 1 plus 1 प्लस सी. एक फॉर्मूला लगा दिया है मैंने, कुछ नहीं किया है. तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4/6 x raised to the power 6 माइनस 6/2 x raised to the power 2 प्लस c स्क्वायर हो गया. ओके, सो दिस विल बिकम व्हाट 2/3 x raised to the power 6 माइनस 3x स्क्वायर प्लस c. ये आपका क्या हो जाएगा fx आ जाएगा. अरे आ गया नहीं आ गया fx, कैपिटल fx फंक्शन आ गया आपके पास. अब हमको आगे क्या दे रखा है यहाँ पर, अब हमको गिवन ये है, इसे हमने ऊपर लिखा भी था आपके लिए कि गिवन क्या है हमको, f of 0 is 1, put x 0, so f of 0 will be what 2/3 0 माइनस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस c. f of 0 क्या है 1 है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1. जब भी ऐसी इनिशियल कंडीशंस दी हो, देखो इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल कंडीशंस कहते हैं. तो इनिशियल कंडीशंस दी हो तब हमारा कांस्टेंट की वैल्यू हम डिटरमाइन कर लेते हैं. तो हमारा यहाँ से जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कटेंगे आपके पेपर में. fx विल बी व्हाट, नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ योर कांस्टेंट, सो इट विल बिकम 2/3 x raised to the power 6 minus 3x square plus 1. Okay, I hope it is clear. Now the next question. Our next question. Now see what will be our next question. That is today's third question. I have given you 2 more questions earlier also. Okay, now our next question is integration of what, 2a by root x, 2a by root x minus b upon x square plus 3c. this is a root cube of x square. अब समझिए इसको आप, और dx, ठीक है ना, ये कंप्लीट है. देखो इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी मान लेते हैं, a माइनस बी प्लस सी है, तो हम ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं इसको. क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c, ये हो जाता है. अब ये क्या है, क्यूब रूट है, ये cube root of x square, that is cube root means 1/3 power. So this will become what, this will become integration of 2a, this will be root x, that is x raised to the power minus 1/2. बता चुका हूं मैं पहले, बता चुका हूं नहीं बता चुका हूं आप लोगों को, माइनस b raised to the power x minus 2, x raised to the power minus 2 plus 3c. Now x square raised to the power 1/3, so x into this will become x to the power 2/3 and dx. फिर से समझ लो, रूट क्यूब का मतलब क्या, 1/3, इस पे पावर पहले से क्या है 2, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या होगा 2/3 हो जाएगा, समझ लो. नेक्स्ट इसको हम क्या करेंगे, अब वही सिंपल फॉर्मूला, जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है. जब बाकी सब कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लो. बाहर निकालने के बाद आप मतलब आउटसाइड द इंटीग्रेशन. ओके, दिस विल बिकम 2a आउटसाइड एंड दिस विल बिकम x raised to the power minus 1/2 dx. Getting it? Now minus b will be outside, integration of x raised to the power minus 2 dx.
Now 3c will be outside. Integration of x to the power 2 by 3 dx. अरे होगा नहीं होगा, हो जाएगा. सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर भी क्या लगाना है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx विल बी व्हाट, x रेज़ टू द पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c. c is what, a constant of integration. So this will become 2a. Now this is x raised to the power minus 1 upon 2. So this will become x raised to the power minus 1 upon 2 plus 1 n plus 1 minus 1 upon 2 plus 1 n plus 1. Okay. Now minus b. This is minus 2. So this will become what? X raised to the power minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 plus 3c. This will become what? X raised to the power 2 by 3 plus 1 upon 2 by 3 plus 1 and a constant of integration. Okay, what will be there? A constant of integration will be there. So this will become 2a and this will be 1 upon 2. So 1 upon 2 upon what? X raised to the power 1 upon 2 minus b. X raised to the power minus 2 plus 1 is minus 1. Similarly minus 1 plus 3c. Now 2 upon 3 plus 1 will be what? 5 upon 3, and this will also be 5 upon 3 and plus constant. So this will become what? 2 will be gone to the first place. अरे ये भी तो जानते हो ना, a upon b अपॉन c अपॉन d क्या हो जाता है, a इंटू डी और b इंटू सी हो जाता है. इसी तरीके से तो ये 4a हो जाएगा और x रूट x हो जाएगा. रूट x मतलब x की पावर 1 अपॉन 2 माइनस वन प्लस b और x माइनस 1 है पावर तो ये नीचे आ जाएगा प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3 ऊपर चला जाएगा तो 9c अपॉन 5 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 3 प्लस c. c इज व्हाट? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये आपका आंसर हो जाएगा. समझ में आ रहा है तो बताइए, कमेंट कीजिए. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके, so moving towards our next question. Our next question will be the fourth question, है ना. फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारा. फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना. सो फोर्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 3x माइनस 1 and dx. Okay, getting it? Now see how to do these type of questions. जब भी आपको यहाँ पर इस तरीके से मैं ट्रिक समझाता हूँ आपको, जैसे 3x माइनस 1 दे रखा है या फिर मान लेते हैं a माइनस 1 दे रखा है और ओपन a दे रखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसको डिवाइड तो नहीं कर सकते, सिंपल टर्म्स में तो नहीं ला सकते. ये किस में आ गया, रैशनल में आ गया है, a अपॉन b फॉर्मेट में आ गया है. तो इसको हम रैशनल से ले जाके हम सीधे डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे इसको. समझो अब इसको कैसे करोगे डिजिट्स में कन्वर्ट. तो हम करेंगे यहाँ पर लेट 3x माइनस 1 विल बी t. ओके, वी विल लेट 3x माइनस 1 एज t. नाउ वी विल डिफरेंशिएट. देखो हम टर्म, अब जो हमारा इंटीग्रेशन का जो जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x, अब हम इसको t में चेंज करेंगे. ये समझो आप क्या कर रहे हैं, हम t में चेंज करेंगे. तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम यहाँ पर. जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल बिकम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे यहाँ पर हम दोनों साइड, दिस विल बिकम 3 एंड कांस्टेंट का करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा dt बाई dx. So our dx will become what? dt by 3. ये फर्स्ट मान लो इसको.
इसी का यूज़ करना है हमको। अब बहुत सिंपल हो गया ये समझ में आया है ना सबको? नहीं आया तो दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो देख लो। इंटीग्रेशन ऑफ, अब 3x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी ये बताओ आप लोग? 3x विल बी t plus 1, okay, so this will become t plus 1 and 3x minus 1 is what? T only, and dx is what? dt by 3, dt by 3. Getting it? I hope you are getting it these things. Now आप क्या करेंगे? t से अब तो डिफरेंशिएट इसका डिवाइड कर सकते हो, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, डिवाइड तो कर सकते हो इसका। अब देखो, अब मैंने क्या कहा था आपको, रैशनल फॉर्म में है, इसको हम क्या ले जाएंगे? सिंपल टर्म्स में ले जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी के टर्म्स में। तो कैसे करेंगे? t से डिवाइड करोगे इसका तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसका क्या आएगा? 1/t आएगा। 1/t का मतलब क्या होता है? t की पावर -1, 1/3 बाहर हो जाएगा। क्यों? कांस्टेंट। अब हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये समझो अब आप लोग, बहुत जरूरी है समझना। नाउ so this will become 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू, आई विल जस्ट शो यू नाउ, 1 dt हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? 1/3 लिखना मत भूल जाना, ये की टर्म पे लिख दो, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 1/t is t raised to the power -1 dt. नाउ दिस इज व्हाट t 1 इज क्या होता है? 1 क्या होता है? t की पावर 0। अरे हम इसको लिख सकते हैं ना, t की पावर 0। तो t की पावर 0 का dt का क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला है वही, t की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस 1/3 अगेन t की पावर -1 है, t की पावर क्या है? -1 है। अब यहां समझो आप लोग कि t की पावर -1 का हमने जब ये फॉर्मूला लिखा था x रेज़ टू द पावर n dx करते हैं हम, इसका x रेज़ टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब अगर जब ये तब होता है जब n इज नॉट इक्वल टू -1। क्यों? जब -1 हो जाएगा ये, तो -1 + 1 विल बी 0, अपॉन में 0 तो मतलब इन्फिनिटी, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा हमारा, इन्फिनिटी हो जाएगा ये। तो इस पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या हो दिखाया था मैंने आपको फॉर्मूला? log x। तो यहाँ क्या आएगा? log t एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1/3 t, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा? 1/3 log t प्लस c। अब ऐसे ही मत छोड़ देना, आपको t की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में है? x में है। तो दिस विल बिकम 1/3 इंटू t, t इज वॉट? 3x - 1 प्लस 1/3 and t is what? log of 3x - 1 plus c. So this will be our answer. Okay, hope you are getting these all of the questions in a better manner. Okay, getting it? Now we will do one more question for this video. Okay students, now we'll do one more question for this video. Let me just take out a new page. So in total this will be our 7th question, but what I am writing and will be our 5th. In terms of that, it will be 5th one. So 5th one will be integration of a raised to the power x plus b raised to the power x upon a raised to the power x into b raised to the power x and dx. दिस, अब इसको समझो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, इसको समझो आप, इसको कैसे करोगे। और जो a रेज़ टू पावर x प्लस b रेज़ टू पावर x का ये होल स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लीजिए आप। ये क्या है हमारा यहाँ पर? होल स्क्वायर है। गेटिंग माय पॉइंट? तो होल स्क्वायर तो खोलना आता ही है सबको, ओपन करना आता है ना, अप्लाई तो कर लेते हो ना। तो क्या होगा? a रेज़ टू पावर x प्लस b रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर क्या होगा? ax का होल स्क्वायर प्लस b रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 a रेज़ टू पावर x b रेज़ टू पावर x अपॉन a रेज़ टू पावर x इंटू b रेज़ टू पावर x एंड dx। अरे यही होगा ना,
equals to this will become what, a मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पावर में क्या आएगा 2x प्लस b रेस टू द पावर 2x प्लस 2ax b रेस टू द पावर x dx अपॉन में क्या आएगा हमारा a रेस टू द पावर x एंड b रेस टू द पावर x. ओके, सो नाउ अब हम इसका इसमें यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, इसको सॉरी डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं, सॉरी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा a रेस टू द पावर x, a रेस टू द पावर 2x विल बी अपॉन ax इंटू b रेस टू द पावर x प्लस वही इंटीग्रेशन ऑफ b रेस टू द पावर 2x अपॉन a रेस टू द पावर x इंटू b रेस टू द पावर x dx प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a रेस टू द पावर x b रेस टू द पावर x अपॉन a रेस टू द पावर x b रेस टू द पावर x एंड dx. अरे होगा नहीं होगा, क्लियर हो रहा है ना सभी लोगों को, अच्छी तरह क्लियर है ना ये. तो a की पावर x नीचे है, ऊपर क्या होगी माइनस x, सो दिस विल बिकम a रेस टू द पावर 2x माइनस x अपॉन b रेस टू द पावर x. सिमिलरली दिस विल बिकम b रेस टू द पावर 2x माइनस x अपॉन a रेस टू द पावर x dx. और यहाँ पर हमारा a रेस टू पावर x b रेस टू पावर x दिस विल बी कैंसिल्ड, सेम टर्म 1 dx. I hope it is clear to all of you. Now this will become a upon b whole x dx. यहाँ dx लिख लीजिए आप, अगर मैं भूल रहा हूँ तो लिख लीजिए अपने आप, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन a whole x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx. यही होगा ना. अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ a रेस टू द पावर x dx इज व्हाट, a रेस टू द पावर x अपॉन log a एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सिमिलरली इसी का हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, a क्या है यहाँ पर a अपॉन b है, ये चीज मत चूक जाना फॉर्मूला करके. तो दिस विल बी a अपॉन b की पावर x अपॉन log ऑफ a अपॉन b प्लस सिमिलरली दिस b अपॉन a रेस टू पावर x अपॉन log ऑफ b अपॉन a प्लस 2 1 dx will be what 2x and this will be constant of integration. So this will be our answer. Hope you have understood all these questions. If you have not understood, go and watch the video, first video and this video also. So you will be clear with these concepts. These are the basic questions and you will be doing many more questions, about 100-200 questions for this chapter of integration. This is the biggest chapter and will be comprising of maximum marks in your 12th mathematics boards, okay, for the CBSE as well as ICSE board. And this is also very important chapter for your NDA XY group exams, okay. So just learn them. Till then, goodbye.